Today our lecture would be again regarding the installation of SQL language, because I hear complaint from number of students that they are not able to install it. So if I will go start my lecture regarding the queries, then it would be hard for you to understand that before doing it practically by your hand. So I am using my window operating system today. Although I have installed my SQL on this machine as well, but I will try to uninstall it and then install it again, so that if there would be any hurdle, as you are saying that you are facing some problems while you are installing your SQL. So I will see how can I help you in this regard. If I will not see any difficulties during my installation process, then you can explain me your problems. I will let you know how you can resolve it. Okay. Let Okay, ma'am. me share my screen with you. Hopefully, meanwhile, nobody will disturb us, because it will totally again redirect my concentration. Okay, Ji, you have to click on program and then control panel, and for uninstall a program, if you can see, I have here my SQL router, my SQL server, my SQL shell, and when other all the documents over here. I think before uninstall it, you people can also tell me what type of problem you were facing at the time of installation. Like few of them were sorted out yesterday, but still someone saying that he and she has problem with that. Is there anyone in your class who has succeeded to install their software? Is there anyone? नो मैम, आई डेंट थिंक कि किसी का भी हुआ है। मतलब रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी आती हैं जिसके बाद आगे हम फर्दर नहीं कर पाते और इंस्टॉल नहीं हो पाता इस वजह से, वरना काफी दफा किया है, नहीं हो रहा। चलिए मैं देखती हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे तो इस अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और ना ही विंडो के ऊपर. Okay, it would take some time to be uninstalled, because there are number of applications have been downloaded over here. Hello, come over here. Class, hopefully you can see my screen. I am just busy to uninstall my programs.
Setup is taking some time to be uninstalled. I apologize. Actually, I was not expecting so much delay. I thought it will take just few minutes to uninstall my program. But as you know, there are a number of applications being installed with that, so that's why I need to be uninstall every one. अच्छा, आप लोगों ने ट्राई किया था कि आप लोग अगर विजुअल सी प्लस को साथ में इंस्टॉल करें तो तब आपका किसी को ये मैसेज अपीयर हुआ था कि उनका जो सर्वर है उसके पास वो कनेक्ट नहीं हो रहा या वो कंपेटिबल नहीं है। मैं प्रोसेसर की बात नहीं कर रही क्योंकि एक स्टूडेंट ने प्रोसेसर का तो मुझे बताया था, लेकिन प्रोसेसर का इशू ये था कि उसकी लैपटॉप की कैपेसिटी नहीं थी कि वो उसको इंस्टॉल कर सके। लेकिन अगर ये मैसेज आ रहा था कि सर्वर कंपेटिबल नहीं है तो डेट इज अ डिफरेंट थिंग। जी मैम, सर्वर कंपैटिबल ये भी आता है, मतलब करते हुए, इंस्टॉलेशन करते हुए। नेक्स्ट फर्दर। चलिए अब हम दोबारा से करते हैं, डोंट यू वरी। हम MySQL की वेबसाइट पे जाएंगे सबसे पहले और सेम प्रोसेस हम उसके लिए रिपीट करेंगे कि यू नीड टू बी जस्ट स्क्रॉल डाउन ऑन द बॉटम, towards the bottom you will find MySQL community GPL downloads, and then you will find the community server over there, और फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो तो था ही, आप इस पे क्लिक, अच्छा कुछ लोगों ने शायद ये जिप फाइल हाँ ये भी मुझे एक मैसेज आया था, लेट मी गो बैक। अच्छा किसी ने कहा था कि हमारी फाइल जो है वो जिप फॉर्म में जो है वो डाउनलोड हो रही है, तो हो वी कैन डू डेट जिप में इसलिए हो रही है कि आप लोगों ने इस पर क्लिक किया होगा ना, तो ये ऑलरेडी जिप फाइल है, ठीक है। तो अगर जिप में है तो फिर आप उसको जिप को क्या कहते हैं खोल के, तो उसके अंदर से उसकी एक्जिप फाइल को आप जो है वो रन करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपने क्या करना है, यू कैन ऑल रिपीट स्टेप विद मी, कि आपने माई SQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज पे क्लिक करना है, ठीक है, एंड देन यू विल फाइंड द मोस्ट लेटेस्ट वर्जन 8.0.22, just start to download it, okay, and then you say no thanks, don't need to be logged in it, and you can see our installer is going to be download over here, ठीक है। I will say to ask to open it. Once it open, then you need to he is asking for the verification. Would you like to allow this app to make the changes to your device? I will say yes, please do it, okay, and then it's asking for the exe file, and then it start to find the packages, ओके ये देखिए अब सबसे पहले आपके पास सेटअप टाइप है, चूजिंग अ सेटअप टाइप, ठीक है। आप you can choose developer default or you can customize it, like, but I will prefer that you should all install the full version of MySQL, so that the reason is that अगर आप इसको कर लेंगे तो फिर आपके पास ये सारे ही आ जाएंगे। अगर कोई आपके पास और प्रॉब्लम आ रही है लाइक के इसके अंदर देखिए आपके पास इस फुल वर्जन के अंदर आपके पास सर्वर भी है, आपके पास राउटर भी है, शेल भी है, वर्क बेंच भी है, कनेक्टर्स भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो डेट वुड बी अ बेटर चॉइस, ठीक है। आपने इस पर नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक करने के बाद वो आपसे रूट पूछ रहा है कि ये कहाँ पे जाके इंस्टॉल होगा, ठीक है। हम यूजुअली जो है वो अपनी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ही करते हैं। आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा जी, यू स्टिल हैव वार्निंग विद योर सिलेक्टेड पाथ, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। अच्छा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है तो वो कह रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम उसको मैम क्लिक कर लेते हैं जी। मैम आपकी चेक रिक्वायरमेंट्स में ये देखें आया है, मैनुअल 2 ही आए हैं और पहले पाथ में आया था, और हमारे ये नहीं आता, हमारे डायरेक्ट यही आता है चेक रिक्वायरमेंट्स पे।
आई विल गो बैक। आप बताएं जी, ये पाथ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं आप? नहीं मैम, ये हमारा नहीं आता, और हमारे डायरेक्ट चेक रिक्वायरमेंट्स आता है, और उसमें प्रोडक्ट में आपके 2 उन्होंने ऑप्शन दिए, हमारे तकरीबन काफी ज्यादा है। अच्छा जी, इसकी मैं एक बात बता दूं, मेरे पास पाथ कॉन्फ्लिक्ट इससे ही आ रहा है कि मेरे पास क्योंकि माई एसक्यूएल का फोल्डर ऑलरेडी माई प्रोग्राम फाइल्स के अंदर बन चुके हैं, तो मुझे कह रहा है कि वो मुझे इसलिए कह रहा है कि आपके पास वार्निंग है कि आपके पास ये ऑलरेडी फोल्डर मौजूद है कि क्या आप फिर इसी पाथ पे रहना चाहते हैं, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। अगर आपके पास वो इंस्टॉल नहीं है तो वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है? चलो इज ठीक इट है मैम। सॉर्टेड? जब आप नेक्स्ट पे क्लिक जी करेंगे और वो देखिए फिर मुझे कह रहा है कि यू हैव वार्निंग विद योर सिलेक्टेड पाथ, क्योंकि मैम, ऑलरेडी कर या तो उसकी इसका एक तरीका ये है कि मैं उसका जो नेम फोल्डर का चेंज कर दूं। लेट मी डू दैट। मैं इसको 8 माई एसक्यूएल 1 कर देते हैं या माई एसक्यूएल 2 कर देते हैं, एंड देन लेट्स सी कि वो उसको करते हैं कि नहीं। नहीं तो हम वो कह रहे कि प्रॉब्लम स्टिल देयर। अच्छा जी, क्लास जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो वो मुझसे क्लास में ड्यूरिंग द क्लास पूछे, क्योंकि मैं इस टाइम नंबर ऑफ एप्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ। सो डोंट टेक्स्ट मी, जस्ट आस्क मी by turning on your mic please। अच्छा जी, आपने नेक्स्ट किया, ठीक है जी, जाने दें बात के साथ। हाँ जी, चेक रिक्वायरमेंट्स में आपके पास यहाँ पे बिल्कुल आपके पास ठीक है, यहाँ पे कभी कभी आपके पास 6-7 ऑप्शंस आती हैं, ठीक है? उसमें से आप जो है ना विजुअल, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो की ऑप्शन है मैनुअली, तो आप इसको चेक करके देख लें, तो वो आपको बताएगा। आप इसको जब चेक करेंगे तो आपको बताएगा कि आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा पाइथन की आपको ज़रूरत नहीं है। कई लोगों के पास ना C++ आ रहा होगा इधर, और वो इसलिए आ रहा है कि सम टाइम हम उसके बगैर जो है वो अपना SQL इंस्टॉलर जो है वो नहीं डाउनलोड कर सकते ना। आप में से अगर किसी की ऑप्शन में C++ की ऑप्शन आ रही हैं तो आप उसको चेक कर लें मैनुअली और उसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है? आपके क्लास, आर यू ठीक है मैम। गेटिंग? जी मैम। अगर यहाँ पे मेरे पास 2 आ रही हैं, अगर आपके पास 6-7 ऑप्शंस आए हैं उसमें से C++ को क्लिक करें, उसको चेक कर लें और उसके बाद उसको नेक्स्ट का बटन दबाएं, तो वो फिर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। वो कहेगा कि आपके पास जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है और उसको मैम इंस्टॉल और अपडेट होने की ज़रूरत है जी। मैम जब हम C++ क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो चेक का ऑप्शन नहीं आता, हमारे पास फिर रिक्वायरमेंट आती है और स्टेटस आता है, और चेक का ऑप्शन नहीं आता। और जब हम नेक्स्ट करते हैं तो फिर आता है 1 और मोर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हाँ, हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड। हाँ जी, ठीक है। फिर वो पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपने कहना यस, ठीक है? जी ठीक है मैम, थैंक यू जी। उसके बाद वो आपका इंस्टॉलेशन पेज पे आ जाएगा, जिसपे वो आपको बताएगा कि आपका इसका आपके पास C++ का कनेक्टर, आपके पास ये कनेक्टर नेट का, आपके पास ODBC का और बाकी MySQL की एप्लीकेशन ये सारी डाउनलोड होंगी, ठीक है? आपने इसको एग्जीक्यूट कर देना है। इट विल टेक सम टाइम, डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन के कौन सा अगर आपके पास फास्ट होगा तो जल्दी हो जाएगा प्रोग्रेस, अगर फास्ट नहीं होगा तो इट विल टेक सम टाइम। तो जब तक ये डाउनलोड होता है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम मेरा मैंने जैसे कल आपको मैसेज भी किए थे, मेरे डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होता ही नहीं है। ये इंस्टॉलेशन वाला पेज नहीं खुल रहा आपका? जी मैम, मैंने कल आपको मैसेज भी किए थे कि मेरा उससे आगे जा ही नहीं रहा, और आज अगेन यही हो रहा है। आपको वार्निंग क्या आती है, एरर क्या आता है आपको? मैम कोई एप्लीकेशन रिक्वायर मांगता है कि नेट फ्रेमवर्क 4.5.2 प्लीज इंस्टॉल द नेट फ्रेमवर्क, देन फिर इंस्टॉलर अगेन आपका रन होगा।
ये आपके पास सेटअप टाइप के अंदर पूछ रहा होता है वो? जी मैम, ये जब मैं इधर करती हूँ ना, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, जब यहाँ पे क्लिक करती हूँ डाउनलोड हो जाता है, लेकिन जब ओपन करके इंस्टॉल पे करती हूँ तो वो नहीं आगे आता। आप अपना मुझे एरर बताइएगा प्लीज दोबारा। मैम आ रहा है कि दिस एप्लीकेशन रिक्वायर्स नेट फ्रेमवर्क 4.5.2, प्लीज इंस्टॉल द नेट फ्रेमवर्क देन रन दिस इंस्टॉलर अगेन। जस्ट अ मिनट। आपने उसकी कम्युनिटी वेब पे क्लिक किया था या क्या कहते हैं सिर्फ कम्युनिटी पे किया था? मैम जिस तरह आपने किया है ना, अभी सारा मैंने आपके साथ साथ ही किया है। सही, एक मिनट बेटा। जी आपकी विंडो अपडेटेड है? जी मैम। आपकी विंडो अपडेटेड है? मैम अब अपडेट एक्चुअली ये होगी। जो एरर होते हैं ना नेट फ्रेमवर्क के एरर, ये मोस्टली आपके पास ये आपकी विंडो के प्रॉब्लम की वजह से आ रहे होते हैं। जी मैम। तो आपके पास आप कौन सी विंडो इस टाइम यूज कर रहे हैं? मैम विंडो 7। 7 यूज कर रहे हैं। और ये आपके पास अपडेटेड है? जी मैम अपडेटेड है। हम्म। अच्छा तो फिर मैं आपको वो इसका एक लिंक भेजूंगी जिसमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। पहले इसकी एक एग्जिट फाइल को डाउनलोड करके जब आपका नेट फ्रेमवर्क जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है। लेट मी फाइंड अ जिप फाइल फॉर यू सो दैट इट कुड बी इंस्टॉल्ड फर्स्ट, ठीक है? जी मैम। ये विंडो एरर है, ये सिक्वल का एरर नहीं है, बेसिकली ये विंडो एरर है। लेट मी फाइंड अ जिप फाइल फॉर यू। पहले तो मैं इसको व्हाट्सएप पे खोलूँ। 4.5 बताया था आपने बेटा जी मैम। कि 4.2 है, 4.5.2 है? कौन से वाले आप? मैम एक मिनट। मैम 4.5.2। और कितने बिट का आपका है? 64 बिट की।
अगर मुझे इसकी एग्जिट फाइल मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं आप बिल्कुल इसी तरह इसको सर्च कीजिएगा और उसको डाउनलोड करें अपने उसके ऊपर अपनी विंडो पे। बल्कि आप ऐसे करें, सर्च ही करें, इसकी एग्जिट फाइल नहीं है, डायरेक्ट उनकी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, आप जी राइट करें कि नेट फ्रेमवर्क 4.5.2, जी बल्कि लेट मी गिव यू अ लिंक ताकि आप डायरेक्ट इधर ही आ जाएंगे। कंट्रोल सी होता है शायद विंडो में। व्हाट्स आई विल सेंड यू इन ग्रुप। ठीक है, होपफुली यू आर गेटिंग इट। जी मैम। अच्छा, ये आप ही का मैसेज था, ठीक है। जी चलें, आप इसको करें, इंशाल्लाह ताला ये आपके विंडो का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे कहाँ पे थे? लेट मी फाइंड इट अगेन। ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलेशन इसकी शेल की रहती है। और स्टूडेंट्स बाकी सबका हो रहा है? यस मैम। और अगर हमारी क्लास का सेशन एंड हो जाए तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू जॉइन मी अगेन। ओके, ओके मैम। बाकी क्लास हो रही है या साथ साथ कर रही है? हसन खालिद, आपका इशू सॉल्व हुआ है? मैम डाउनलोड कर रहा हूँ। सही। Why not? I should take your tendencies, right? Okay, class, it's almost done. We will click on next after the installation, and let's take some time. It's done. ओके क्लास, इसमें जो आपका TCP/IP है उसमें पोर्ट नंबर आपका बाय डिफॉल्ट है, प्रोटोकॉल पोर्ट भी आपकी बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग ओवर हियर, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन द जी। मैम इसके बाद प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन का वो आता है, और अगर वो ना करो तो फिर कनेक्ट टू सर्वर आ जाता है। आप मुझे काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी मेरे साथ? एक मिनट में आपकी अटेंडेंस फाइनल कर लूँ तो फिर आप मुझसे अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जस्ट मैम एक्चुअली मैं लैपटॉप पे कर रही हूँ और मैं क्लास उस पे ले रही हूँ, Zoom पे, ये मोबाइल पे। आप अपने मीनवाइल आप अपने जूम जो है उसको ऑन कीजिएगा अपने लैपटॉप के ऊपर।
क्योंकि मैं आपकी देखूंगी तो मैं फिर ही अंदाजा कर सकती हूँ कि प्रॉब्लम जो है वो किधर है। ठीक है, ठीक है मैम। Class, should I move from here from authentication method? ऑथेंटिकेशन मेथड पे आके आपने इसको नेक्स्ट क्लिक करना है, तो वो आपसे जो रूट का पासवर्ड है वो पूछेगा, आपने उसका पासवर्ड देना है। यहाँ पे उसको चेक करना है क्या करता है उसके बारे में। He doesn't like it. इसके एक रीज़न ये भी है कि माइट भी मेरे पास सारे इंस्टॉलेशन पहले से हैं तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, हालांकि मैंने उसको इंस्टॉल भी किया था, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इसको पहले मुझसे सर्वर का नेम और फिर पासवर्ड देना चाहिए था। ओके, इट्स डन। क्लास ये पासवर्ड चेक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास माई एसक्यूएल 80 लिखा आएगा, सर्विस नेम, डेट्स फाइन। आपके पास स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट है, डेट्स आल्सो फाइन। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो आपको कॉन्फ़िगरेशन करने को कहेगा, आपने उसको एग्जीक्यूट कर देना है और कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम जो है अपने लास्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। It's done and then click on finish, and then again it's asking for product configuration to be complete, then click on next। यहाँ पे आपके पास ये जो पोर्ट रूट ये सारा कुछ जो है ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट ही देना है, ठीक है, इसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। देन क्लिक ऑन finish and then next one more time, and then it's asking for a password again which you have given already। ठीक है, आप यहाँ पे आके अपना कनेक्शन चेक कर सकते हैं। देखिए मेरा कनेक्शन सक्सीडेड, इट्स मीन एवरीथिंग इज डन परफेक्टली। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। आपके पास जो है ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेप सब जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। आई हैव लेस देन अ मिनट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके पास ये 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाए, बट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ माय इंटरनेट। ईशा, आप अपने एरर का बता रही थी, कौन सा क्या एरर आया आपके पास? मैम मेरा कनेक्ट का सर्वर, सॉरी,
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, बट आपने बड़ा लेट बताया, मैं तो काफ़ी स्टेप्स गुजार चुकी थी। आपने जो है, मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि आपने क्या किया। बेसिकली आपने किया कि जब आपने उसको फिनिश का प्रोसेस कंप्लीट किया तो आपके पास वर्क बेंच SQL का जो है वो ऑटोमेटिकली खुल गया, बिकॉज एट द एंड ऑफ दे वर आस्किंग दैट यू नीड SQL एट द स्टार्टअप, वी हैव ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इट्स चेक इन। I just click on finish, and when I click on finish, a command prompt window and workbench SQL workbench जो था वो open हो गया। मुझे command prompt की ज़रूरत नहीं थी, I just close it with the red button, और SQL workbench के ऊपर मैंने वर्क शुरू किया। I told you that in my Mac operating system administration and schema was on top, but here in bottom, but you don't need to be worry about it, उनका वर्क सेम ही है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर टूल वर्क्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं, और स्कीमास के अंदर आपके पास जो डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है वो ही आपके पास मौजूद है। ये आपके पास नेविगेशन पैनल है, और ये आपके पास जो है क्यूरी एडिटर है जिसके ऊपर मैं क्यूरी लिख रही हूँ डेटाबेस को क्रिएट करने की, जो कि मेरे पास स्टूडेंट थी। आपने डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसको सिलेक्ट करना है, जो मैंने आपको जैसे कल बताया था। आई एम जस्ट डूइंग टू select it. I don't know why window operating system has been having problem. Then आपने इस पे लाइटिंग के ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करना है, वो एग्जीक्यूट होगी तो यू कैन सी अ डेटाबेस ऑफ विद द स्टूडेंट नेम इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ग्रीन साइन। अगर ये ना क्रिएट होती तो यहाँ पे क्रॉस आ जाता। अगर आप इसको इस एरो के बटन से रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन फाइंड इजिली अ स्टूडेंट डेटाबेस ओवर हियर। ये तो हमारा आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें। अच्छा जी, ईशा का आ रहा है कनेक्ट टू सर्वर। हाँ जी ईशा, आपने वो C++ नहीं डाउनलोड की इसके साथ, इसलिए ये आपके साथ इशू आ रहा है। डिड यू ट्राई टू इंस्टॉल दैट? ये मेरे पास भी प्रॉब्लम आया था तब, जब आपका वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस ना, अनफॉर्चुनेटली अगेन आई फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट टुडे। तो आपके पास जो है, जब आपने उसकी वो आप कह रहे थे ना कि आपके पास मैम 2 ऑप्शंस आ रही हैं, हमारे पास ज़्यादा आती हैं, तो उसके अंदर आपके पास विजुअल स्टूडियो या C++ में से आपके पास जो अवेलेबल नहीं है ना, दोनों को आपने चेक कर लेना है मैनुअली, और उसको आपने करना है। अगर वो आपके पास एक दफ़ा चेक इन हो गया तो वो इंस्टॉलेशन के दौरान जो है इंस्टॉल हो गया आपके साथ, तो फिर आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कनेक्ट टू द सर्वर का। इसको अन इंस्टॉल करें और दोबारा से स्टेप्स को रिपीट करें। जी मैम। मैम एक्चुअली मेरी लाइट चली गई थी और डिस्कनेक्ट हो गया सारा, तो मेरा कनेक्ट टू सर्वर आ रहा है, तो उसके आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हाँ उसको जी, वो आपको रिमूव प्रॉपर्ली कर दूं, इंस्टॉल और नहीं बैक पे भी होगा। नहीं हो रहा। हाँ जी, वो आपका प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ है। आप ऐसा करें कि उसको अनइंस्टॉल करें, और जो आपके पास से कॉन्फ़िगर मैनुअली होता है ना, जिसके अंदर आपके पास पाइथन भी आ रहा था, आपके पास MySQL शेल राउटर कनेक्टर आ रहे थे C++ के, ठीक है। उसमें और आपने जी मैम। उसको आपने जी मैनुअल, वो उसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली उसको नहीं उठा रहे, आपने उसको मैनुअली क्लिक करके तो वहाँ पे चेक करना है, और चेक के बटन को क्लिक करना है। विजुअल वाले को भी और C++ वाले दोनों को कीजिएगा, ठीक है। तो उनमें से फिर जो मैम मैंने दोनों किए थे। नहीं, वो फिर नहीं हुए दोबारा, और आपने उसके बाद मैम विजुअल वाला चेक का बटन प्रेस किया था। मैम जब विजुअल वाला किया था तो चेक का किया था, और आपका भी वही आया था जो मेरा आया था कि वो नहीं हो रहा, तो आपने कहा था नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपने कहा था C++ में सिर्फ स्टेटस था, और दी हुई थी एक और स्टेटमेंट दी हुई थी, और इसके अंदर चेक का बट ऑप्शन है ही नहीं, उसमें चेक का ऑप्शन नहीं था। मैम मैंने कल 2-3 बार ऐसे ही इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल किया, और यही मसला आ रहा है बार बार। लेकिन ये मसला सॉल्व हो जाता है। इसके अंदर बस यही मसला है कि जो प्रोडक्ट्स वो आपको ऑफर कर रहा होता है ना, वो उसका पूरा पैकेज डाउनलोड नहीं कर पा रहा। तो जो उसके अंदर मैनुअल है ना,
या आप MySQL फॉर विजुअल स्टूडियो करके देखिए, उसका तो नहीं इशू। जिसके आगे मैनुअल आ रहा है ना, उसको आप चेक करके तो फिर नेक्स्ट करके देखें। जी मैम। इनमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है ना वो डाउनलोड नहीं चलो हो ठीक। रही आपके साथ ऑटोमेटिकली, और उसको आप मैनुअली करके तो फिर आप नेक्स्ट कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा। इसका सिर्फ यही प्रॉब्लम है आपके इंस्टॉलेशन के अंदर। ओके मैम, थैंक यू। मैं नो करती हूँ। प्रॉब्लम। हसन, आपका हो गया? नो मैम, नहीं हो रहा। आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मैम वो कह रहा है प्लीज वेट व्हाइल विंडोज कॉन्फ़िगर माइस्क्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी। इंस्टॉलेशन नहीं हो रही अभी मैम वो। क्यों? क्या आप वो वेट करने, आपका इंटरनेट स्लो है? मैम मैंने अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट दे दिया लैपटॉप को। आपको क्या एरर क्या दे रहा है वो? मैम अभी इंस्टॉलिंग हो रही है, जैसे आपकी इंस्टॉलिंग हो रही थी मेरी भी वैसे हो रही है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई वो। तो कल भी ऐसी हो रही थी जब एरर आया था? नहीं मैम, कल तो मैंने डाउनलोड कर लिया था, लेकिन कंफ्यूजन ये थी, आपने कहा था कि वर्जन 8.0.15 है, तो मेरे 22 हुआ था, तो वो मैंने कल ही डिलीट कर दिया था। आपने मुझे बाद में बताया ग्रुप में कि आपने लेटेस्ट वर्जन करना है। अच्छा जी, ठीक हो गया, सही है। चलिए क्लास, बेस्ट ऑफ लक। आप होपफुली कि आप लोगों का इंशाल्लाह ताला आज जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा और आप इसको सक्सेसफुली डाउनलोड कर लेंगे। अगर जो स्टूडेंट्स ना कर सकें, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज आपका इस वीक का लास्ट लेक्चर है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है वो हम अपनी क्वेरीज स्टार्ट करेंगे राइट करना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके लिए आपका SQL वर्कबेंच और जो है SQL सर्वर दोनों ही इंस्टॉल होने ज़रूरी हैं, ठीक है। Is there anything else you people can ask me? Otherwise I will just stop it. Okay class, see you on Monday inshallah taala, and don't feel any hesitation to WhatsApp me regarding your installation program, and have a nice day. Allah Hafiz.